میری طرف سے، میرے ہسبینڈ کی طرف سے، پاسٹر سلامت برکت کی طرف سے اور ہماری کلیسیا کی طرف سے بہت بہت سلام قبول ہو۔ آج ہم سیکھیں گے ایک بہت بڑا خدا کا بائبل مقدس کا قانون سیکھیں گے تاکہ آئندہ کو یہاں پلپٹ پہ سے کام بتایا جائے، مانگا نہ جائے۔ ہماری کلیسیا اتنی عدم معرفت میں ہے کہ اس نے پاسٹرز کو فقیر بنا دیا ہوا ہے۔ خدا کے کام ہیں، خدا کو فقیر بنا رہی ہے کہ یہ کلیسیائیں، کام خدا کا ہے، ہم خدا کے ہیں، پیسہ خدا کا ہے اور اس کے کام کے لیے مانگا جا رہا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ نہیں ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آج ہم سب مل کر گیونگ اینڈ ریسیونگ، یہ خدا کا اصول ہے، گیونگ اینڈ ریسیونگ، دینا اور لینا، دو اور لو، اس اصول کو سیکھیں گے، اس قانون کو سیکھیں گے اور ہم سب بہت برکت پائیں گے۔ خدا کا کلام جو ایک دفعہ، کلام کا ایک حصہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایک دفعہ ایک انسان سیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، تب اس پر عمل کرنا اس کا فرض بن جاتا ہے۔ اگر وہ عمل نہیں کرتا تو وہ خدا کے شنوا نہیں ہوتے اور خدا کے غضب کے نیچے آ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کر نکالیں مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6واں باب۔ جس کے پاس کتاب مقدس ہے وہ میرے ساتھ مل کر نکالیں مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6واں باب اور اس کی 38ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ آئے ہم چند لمحوں کے لیے آنکھوں کو بند کریں۔ آسمانی باپ، تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ تیری قدرت ہماری کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ اس لیے ہم خوش ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں، کیونکہ تیری قدرت جو چھائی ہوئی ہے ہم اس کو دیکھنے والے ہیں۔ مسیح یسوع کے نام میں ہمارے ذہنوں کو کھول تاکہ ہم تیری کتاب مقدس کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ یسوع نام میں آمین۔ ہم نے ابھی جو حوالہ پڑھا ہے، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ خاص طور پہ جب آپ اناجیل پڑھتے ہیں ایک بات کو یاد رکھیں کہ یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب کے 49ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، باپ جس نے مجھے بھیجا ہے جو کچھ وہ مجھے کہنے کو کہتا ہے میں وہی کہتا ہوں، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں ایک لفظ بھی نہیں بولتا۔ لہٰذا جب آپ اناجیل پڑھتے ہیں اور اس میں خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کو پڑھتے ہیں تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے الرٹ ہو کے ساتھ۔ کیوں؟ ایک دفعہ جو خدا کا کلام سن لیتا ہے اس پر عمل کرنا فرض بن جاتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب عدالت ہوگی تو میں تمہیں مجرم نہیں ٹھہراؤں گا، بلکہ یہ کلام جو میں تم سے کرتا ہوں یہ تمہیں مجرم ٹھہرائے گا۔ میں آرام سے ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوں گا، میں نے نہیں کہنا اس کو میں نے کہا اور اس نے نہیں سنا، وہ کلام کہے گا کہ اس کو میں سنایا گیا، فلاں وقت پہ سنایا گیا۔ جب ہم کلام پڑھتے ہیں اس کو بڑے دھیان سے سننا، ہمیں سننا چاہیے، کیونکہ یہ باپ نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے فرمایا ہے کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔
आज क्या आप पसंद करना, ये सुनना, ये समझना, ये जानना पसंद करेंगे कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज हर घर का एक ही मसला है, खर्चा पूरा नहीं होता, महंगाई बहुत हो गई है या नहीं, है या नहीं है। दो दो लोग कमा रहे हैं तब भी यही मसला है, चार चार कमा रहे हैं तब भी यही मसला है, और खासकर ईमानदारों के साथ तो ये होगा। क्यों? क्योंकि ईमानदार हम कहलाते हैं लेकिन कलाम पर हम अमल नहीं करते। खुदा के कलाम में लिखा है, कलाम पर अमल करने वाले बनो, नाम है सुनने वाले। सो इस बात को अब आपने पीछे छोड़ना है कि हमारे हालात क्या हैं, हमारे पास जॉब है या नहीं, किसी को देने के लिए है या नहीं। इस चीज को सोचने की आज जरूरत नहीं। जरूरत है कि आज कलाम हमसे क्या कह रहा है। आज खुदा का मकसद हमें ये मुकाशफा देना है कि ये कैसे हो सकता है। आप गैर कौम को जानते हैं, वो कहते हैं हाथों का दिया हुआ काम आता है, और वो बहुत देते हैं, वो बहुत देते हैं, और हम क्रिश्चियन उतने ही घुट के रखते हैं, नप के रखी जाए अपने लिए, दूजिया खाते दिए। आज हम सीखेंगे। अमसाल 19वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। और अगर हमने दिया ही नहीं कभी तो मत सोचें कि खुदा भी हमें देगा। अगर हमने कभी दिया नहीं तो खुदा ने भी हमें देने के लिए कभी काम नहीं किया। वो जितना कुछ हमारे पास है, याद रखें, वो एक महदूद है और हमारी दिन रात की कोशिशों से है, हमारे दिन रात की कोशिशों से है। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है, और जब वो नींद में देता है तो देता किसको है? महबूब को। और महबूब कौन होता है? जो उसके कलाम पर अमल करता है। जो अमल करता है वो उससे मोहब्बत रखता है। ये खुदा की बातें हैं। देने की दो तरह की किस्में हैं। एक वो जो हम पर मैंडेटरी हैं, जो लागू हैं, लाजिम हैं। कलाम कहता है दैज की मैंडेटरी है, हमें देना है, हदिया हमें देना है। हम चर्च में आते हैं, देते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा कि मेरे हजूर कोई खाली हाथ ना आए। फिर हम पहले फल, और शायद इस कलीसिया में कोई इक्का दुक्का देता होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में बिल्कुल भी। मैं अपने चर्च में देती हूँ और 2008 से मैंने देना शुरू किया, और तब से मैं अपनी, जब भी मेरी पहली सैलरी तो खैर 1993 में मैंने ली थी, वो तब मुझे पता ही नहीं था। 2008 में जब मैंने इस हवाले को पढ़ा, अमसाल 3 बाब की 5वीं आयत में है कि तू अपने पहले फलों से और अपनी ज़मीन की सारी पैदावार से खुदावंद अपने खुदा की ताज़ीम कर, यूँ तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज़ में नई मै से लबरेज होंगे। फिर खैरात है, जो डोनेशंस हैं, मुख्तलिफ कामों, भलाई के कामों के लिए हम देते हैं। और जो दूसरी है वो ये है कि गरीबों को दिया जाए, है ये भी खुदा का ही हुक्म। यतीमों को, मस्कीनों को, बेवाओं को चर्च बिल्डिंग के लिए देना चाहिए। ये आप अपने अपने हाथों की उंगलियों को देखें, क्या सब बराबर? छोटी, ये सबसे बड़ी, ये से छोटी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सब फर्क हैं। तो देने के तरीके भी अगर दोनों उठा लें तो देने के तरीके बहुत हैं, लेकिन जो सबसे सुपर तरीका है, जो सबसे बढ़कर, जब आप गरीबों को देते हैं वो गरीब का भला होता है, पेशेंट को देते हैं पेशेंट का भला होता है, चर्च को दे रहे हैं चर्च का भला हो रहा है। लेकिन जब हम, जो सबसे ऊपर वाला तरीका है, और वो है कलाम की मुनादी की जाए, जब क्रूसेड किए जाएं, जब सेमिनार्स किए जाएं, तब आप खुदावंद के लिए दिल खोल के दें, क्योंकि उससे डायरेक्ट फायदा किसको हो रहा है? खुदा बाप को हो रहा है, क्योंकि उसका कलाम लोगों तक पहुंच रहा है, उसका कलाम उन रूहों तक पहुंच रहा है जो अभी तक कलाम के इंतजार में है, जो अभी तक निजात की खुशखबरी के कलाम के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे सुपर तरीका क्या है?
खुदा के कलाम की मुनादी के लिए क्रूसेड्स में दिया जाए और सेमिनार्स में दिया जाए। सबसे ऊपर तरीका डायरेक्ट इससे किसका जो है वो काम हो रहा है, वो खुदा का। क्यों? उसने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा कि जब तक मेरा कलाम दुनिया की इंतहा तक ना पहुंच जाए, मेरा आना जल्द ना होगा। तो जब उसका कलाम पहुंचेगा तो वो आएगा। दुखों से घबरा के हम कहते हैं खुदावन तू आ जा, बस होड़ बड़ी हो गई। पर कभी ये नहीं सोचा, अब तब भी खुदगर्जी करते हैं, आ जा हुण मैनू ले जा। अगर वो आ जाए बादलों पे और कलीसिया उठाई जाए, तो सोचें वो लोग जो अभी तक गैर निजाफ्ता हैं वो तो रह जाएंगे, और उन गैर निजाफ्ता जो लोग हैं उसमें से बहुत हमारे अपने प्यारे हैं, वो रह जाएंगे, क्या करेंगे? और जो हमारे अपने नहीं हैं, दूर दूर हैं, वो खुदा के तो हैं ना, उसके काम के लिए हमें देना है। तो जब आप सेमिनार्स के लिए देते हैं, जब आप क्रूसेड्स के लिए देते हैं, तो कलाम उन जिंदगियों तक पहुंचाया जाता है जो अभी तक कलाम से बेबहरा हैं। सो हमें, अगर हमने आज तक नहीं दिया जिस तरीके से खुदा चाहता है, तो हमें इस फार्मूले को सीखना है, गिविंग एंड रिसीविंग। फिलिपियों चौथे बाब की 5वीं आयत में ये गिविंग और रिसीविंग, ये मेरे दिल का कोई तैयार करदा फार्मूला नहीं है, ये खुदा का फार्मूला है। हम ऊपर से भी पढ़ते आ रहे हैं, और अब फिलिपी 14:4-15 में लिखा है, और ए फिलिपियो, पौलुस रसूल कह रहे हैं, तुम खुद भी जानते हो कि खुशखबरी के शुरू में जब मैं मकीदुनिया से रवाना हुआ तो तुम्हारे सिवा किसी कलीसिया ने लेने देने के मामला में मेरी मदद ना की। किस मामला में? लेने देने। खुदा के कलाम के लिए पौलुस रसूल मुनादी करने के लिए जाता था, उसे गैर अक़वाम के लिए निकाला गया था और के लिए उसे चुना गया था और उसे भेजा गया था, और वो खुद भी काम करता था, अपनी गुजर बसर के लिए खुद काम करता था, और साथ साथ में मुनादी के लिए भी अपना पैसा देता था, और कलीसियाओं को भी, कलीसियाएं भी देती थी, लेकिन सबसे ज्यादा देने वाली कलीसिया फिलिपियों की कलीसिया थी। कुछ लोग सोचते हैं कि जब हम देते हैं तो दे देते हैं। हम आज सीख रहे हैं गिविंग एंड रिसीविंग, देना है और फिर इस तवक्को पे, इस ईमान के साथ कि मैंने वापस लेना है। अभी तक जो हम मुकम्मल तौर पे खुदावन में तरक्की नहीं कर रहे, इसकी वजह ही यही है। कुछ लोग इतने दयालु बनते हैं, इतने वो सखी बनते हैं, वो दे देते हैं। मेरा एक कज़न है, मैं जब कभी उससे मांगूं तो वो दे, तो मैं उसे कहती हूँ कि इसको बीज का नाम दिया है, इस पे दुआ कर। ओ कोई नहीं, खैर है, खुदा दे कार ले देता, खुदा दे कम ले देता। ये गलत है। इसका मतलब है कि खुदा को ज़रूरत है, उसके बच्चे रो रहे हैं आसमान पे, जिनके पास आज दूध नहीं है, तो हमने देना है, और उसने अपने बच्चों को खिलाना पिलाना है, उसने ईद के लिए कपड़े लेने हैं। खुदावन को इस तौर से देना खुदावन की बेइज्जती है। बल्कि जब आप खुदावन को दें तो साथ में ईमान रखें कि मैंने वापस लेना है, तो वक्को रखनी है, तब आपको 1000 गुना वापस मिलेगा, उससे पहले नहीं। क्यों? आपने उसके पूरे कानून पे अमल नहीं किया, आपने आधे कानून को ले रहे हैं, देने के कानून पे आप अमल कर रहे हैं, वापस लेने के कानून को आप समझ ही नहीं रहे, और फिर कहते हैं बथेरा दई दे, समझ नहीं आती। तो समझ कहां से आए? समझ कहां से आए? क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम के लिए हमने कानों को बंद किया। हम इतनी जल्दी जल्दी में सुनते हैं, हम इतनी जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं कि पूरा गौर ही नहीं करते। खुदा चाहता है, और ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है, बस देना और वापसी की उम्मीद ना रखना गैर जिम्मेदारी का सबूत है। बेशुमार लोग
मुंतज़िर हैं निजात के कलाम के लिए। आप कहेंगे एक तरफ बात हो रही है देने की और फिर वापस लेने की, और इसमें जो वो मुंतज़िर हैं वो कहाँ से आ गए? आगे चलेंगे तो आप सीखेंगे। खुदा चाहता है कि जब हम माली बीज बोते हैं तो इससे फसल काटने की उम्मीद रखें, तवक्को रखें और अपनी झोलियां बड़ी कर लें, क्योंकि आप 1 रुपया दोगे वो 1000 रुपया लौटाएगा। इसी से आप मल्टीप्लाई करते जाएं। आप 1000 देंगे, 1000 देंगे, 1000 से उसे मल्टीप्लाई करें। लेकिन एक बात याद रखें, जरूरी नहीं कि हर चीज आपको पैसे की सूरत में रिटर्न हो। अगर आपको खुदा के कलाम की समझ आना शुरू हो गई है, खुदा आपको इज्जत दे रहा है, वो बुलंदियों तक ले रहा है, वो आपके बच्चों को सही राह पे लेके जा रहा है, तो ये सब उसी देने का ही नतीजा है। हमारी ज़रूरत क्या है? हमारी ज़रूरत है कलाम को बड़े गहराई में सीखें। मेरे साथ मिलकर निकालें, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, हम बड़े ठहर ठहर के इसको जो है वो पढ़ेंगे और समझेंगे। 2 कुरिन्थियों 9वां बाब और उसकी 8वीं आयत। 2 कुरिन्थियों 9वां बाब और उसकी 8वीं आयत। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। ध्यान से अब इसको जरा ना च्युइंगम की तरह चबाना है इस आयत को। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। कर सकता है ये नहीं लिखा करेगा। कर सकता का मतलब ये है कंडीशन है साथ में, इसके साथ में कंडीशन है। अभी आयत को पूरा पढ़ेंगे। क्यों कसरत से फजल कर सकता है? ताकि तुमको हमेशा, एक एक लफ्ज गौर करने वाला है इस आयत का, मेरी फेवरेट आयत है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे। खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे। और हर यही पॉइंट है जो आपकी तरफ से है। 2 पॉइंट खुदा की तरफ से हैं, तीसरा पॉइंट आपके लिए है। और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। आमीन। क्या है? खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। वो कर सकता है पर वो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपने उसके कलाम को पर अमल करना नहीं शुरू किया, समझा नहीं, अमल करना शुरू नहीं किया। वो क्यों कर सकता है? वो इसलिए कर सकता है ताकि आपको हर चीज, इस आयत में 3 हर पर गौर करें। 3 हर हैं, हे रे हर तरह का फजल, हर चीज, हर नेक काम। वो क्यों देता है? ताकि वो क्यों देगा या वो देता क्यों है? ताकि आपके पास हमेशा अपनी जरूरतों को पूरा करने के बावजूद इतना कुछ आपके पास रहा करे कि जब किसी नेक काम का ऐलान हो वो मांगे ना कि हमें दो, आप खुद से उठ के कहें मैं इतना दूंगा। इस भेद को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? चर्च ने तो कभी कभी मांगना है, आपने तो हर महीने एंजॉय करना है, आपने हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते आपने खुदा की बरकत को एंजॉय करना है। हम दबा के बैठे हुए हैं, क्योंकि दबा के बैठे हुए इसलिए उतने के उतने हैं। प्रॉस्पेरिटी हमारे घरों में नहीं आ रही, हालात बदलने की ख्वाहिशें हैं, हालात बदलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम, पहला कदम किसकी तरफ से है? गारंटी आपको इस लाइन में, इस आयत की पहली लाइन में गारंटी दे रहा है खुदा कि और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। अगर तुम उसको दो तो वो कसरत से तुम्हें देगा। खुदावंद किस लिए आया? कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। असी राम ना बैठे हैं, हमारी जिंदगियों पे हमारे हुक्म चल रहे हैं। कलाम तो साइड पे है। अभी बहुत खूबसूरत गीत गाया, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना बाएं मुड़ना।
मोड़ जाए मुंह लोग ये सारे, मैं कभी ना मुंह मोड़ूंगा। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि तू एहतियात करके इस पर अमल करे। तब तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। जो सही राह जो मंजिल तक पहुंचाएगी वही इकबाल मंदी की राह है। वो इकबाल मंदी की राह तुझे तब मिलेगी और तू खूब कामयाब होगा। कब? ये राह बता रहा है खुदा। और ये कलाम पता किन के लिए है? आप सबके लिए नहीं है, सॉरी। ये उनके लिए है जो अपने हालात को बदलना चाहते हैं। जिनके हालात पहले ठीक है, उनको क्या जरूरत है बदलने की? जो हालात बदलना चाहते हैं, ये कलाम उनके लिए है, क्योंकि वो इस पर अमल करेंगे। जो अमल नहीं करेंगे, ये उनके लिए तो है ही नहीं। अपने आप को जांचें कलाम के साथ साथ कि क्या आज का कलाम आप चाहते हैं कि हमारे हालात बदलें? तो इसको ध्यान से सुने। वो फजल कर सकता है, ये गारंटी आपको दे रही है ये लाइन। और क्या क्या कर सकता है? वो हर चीज आपको काफी तौर पे दे सकता है। क्यों? क्योंकि ताकि आपके पास हमेशा उसके नेक कामों के लिए देने को हमेशा मौजूद रहा करे, बहुत मौजूद रहा करे। इतना वो आपको देगा अगर आप उसके इस कानून को, गिविंग एंड रिसीविंग, जब आप देते हैं तो तवक्को करें कि मैंने लेना है। जब सोचते हैं कि मैं इतना निकालूंगा तो इस तवक्को के साथ मैं 1 लाख निकालूंगा, मुझे 1 करोड़ मिलेगा। मैंने लेना है और मैंने खूब लेना है। क्यों? ऐशो इशरत में उड़ाने के लिए। व्यामत जान ले, घर को अच्छी से अच्छी नेमतों से डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल नेमतें हमारे पास हों, पर जब खुदा का काम आए तो चुप करके कुन्ने मुन्ने बन के बैठे रहिए। बल्कि पहले किसके लिए? अभी हमने जो कलाम का हिस्सा तलावत किया गया, क्या उसमें पढ़ा कि खुदावंद जब तू बहुत अमीर हो जाए तो मुझे भूल ना जाना। जब तेरे पास खाने को बहुत कुछ हो, जब तेरे पास सोना चांदी भेड़ बकरियां हर चीज काफी हो, तो मुझे भूल ना जाना। क्यों? क्योंकि तुझे मेहनत करने की ताकत मैं देता हूं। तो मेहनत करने की ताकत कौन देता है? खुदा। तो फिर वापस उसी के काम के देने के लिए हम बिल्कुल ही खत्म हो जाते, चुप भी हो जाते। मांगने के लिए ऊंची ऊंची दुआएं दे दे यीशु के नाम में, और कभी सोचते ही नहीं कि ये उसने खाली हमारा हिस्सा हमारे हाथ में नहीं दिया, ये सारे का सारा हमारा नहीं, इसमें उसका भी है, दर्जे की भी है, हदिये भी हैं। क्रूसेड्स पे, नेक कामों पे देने के लिए, उसके कलाम को फैलाने के लिए इसमें उसका हिस्सा है, हमें देना है। खुदा का ये प्लान का बहुत कुछ मौजूद रहा करे का मतलब है आपकी सारी ज़रूरतें भी, इतना कुछ वो आपको देगा, इतना वो कसरत से फजल कर सकता है कि आपको हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा भी कर लें, तो भी आपके पास इतना ढेर हो कि खुदावंद के कलाम के देने के लिए कभी आपको सोचना ना पड़े। पाजी साहब दूसरे मंगे महीने दे आखिर ते हुण ते कुछ भी नहीं हैगा। तो खुदा का ये जो लाइन है ये कह रही है कि महीने के आखिर पे भी आपके पास इतना कुछ हुआ करे कि आप हमेशा नेक कामों में देने के लिए आपके पास हो। खुदावंद के लोग अमीर तरीन लोग होने चाहिए, जबकि गैर कौमों के लोग अमीर तरीन है। क्यों? क्योंकि वो देते हैं। यहोवा विटनेस वाले बहुत देते हैं, बुद्धिस्ट बहुत देते हैं, अपने इर्द गिर्द देख लें बहुत देते हैं, वो अमीर हैं। हम में कुछ कुछ अमीर हैं, बाकी सारे निचले लेवल पे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदा के कामों के लिए दिल खोल के नहीं देते। और जो दुनिया की दौलत की जो मैनेजमेंट है वो हमने किसकी तरफ कर दी है? हमने दुश्मन की तरफ कर दी है। हमने इब्लीस की बातों को मानना शुरू किया। वो कहते हैं डेबिट कार्ड ले लो,
کوئی بات نہیں، آپ کے پاکٹ میں ہے، نہیں بھی پیسے جیب میں تو آپ جس دکان میں جاتے ہو لے لو، اس کے اندر کریڈٹ ہوتا ہے 20,000 کا 30,000 کا، اور ہم لے لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ قرض لینا ایک لعنت ہے، اور ہم خود بخود اپنے ہاتھوں سے لعنتوں میں جاتے ہیں اور اپنی نسلوں کو لے کے جاتے ہیں۔ قرض لینے والا لعنتی ہے، اور وہ اپنی بچوں کو بھی لعنتوں کے نیچے لے گیا، اور اپنی بچوں کے بچوں کو بچوں کے بچوں کو نسلوں کو لے گیا۔ اور آج اگر کوئی خداوند کے کلام کی طرف آتا ہے، دینا کیا ہے؟ ایک نجات ہے، رہائی ہے۔ اگر آپ غربت سے رہائی چاہتے ہیں، دینا شروع کریں خداوند کے کام۔ اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی آ کے کہے بھائی جی اتنے پیسے دو۔ سننے کے لیے بےتاب رہیں، تیار رہیں۔ کسی نے خدا کے کام کی بات کی ہے، وہ اس کے مانگنے سے پہلے میں اس کو پکڑا۔ آمین۔ خدا کا دینا خدا کے کردار کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ نجات کا سارا منصوبہ دینے اور لینے کے گرد ہی گھومتا ہے۔ خدا نے بہت کچھ کھویا، پتہ کیا کیا کھویا؟ سب سے پہلے جو ہائی رینک کا فرشتہ تھا وہ اس سے وہ کھو گیا۔ اس کے بعد 1/3 فرشتے اس کے ہاتھ سے چلے گئے۔ اس کے بعد آدم اور حوا جس کو اتنے محبت سے اتنے پیار سے بنایا وہ چلے گئے۔ زمین چلی گئی، اور زمین کی ساری فلنس بھی چلی گئی۔ خدا کے پاس کیا تھا؟ صرف اوپر 2/3 فرشتے، آسمان تھا اس کا، 2/3 فرشتے تھے اور بیٹا تھا اس کا۔ اسے وہ لینا تھا واپس، وہ وہیں پہ صبر کر کے نہیں بیٹھ گیا چل جڑا چلا گیا خاص کم جہاں پاک نہیں۔ اس نے انسان، اس کی سب سے بڑی جو چیز تھی جو ختم ہوئی برباد ہوئی وہ انسان تھا۔ انسان کے ساتھ اس نے محبت کی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو ہر چیز خدا کے اندر سے نکلی ہے، ہر چیز خدا کے دل سے نکلی ہے۔ کوئی چیز موجود نہیں تھی، صرف خدا تھا، وہی قدیم الایام تھا۔ ہر چیز اندر سے نکلی۔ اس نے جس کے لیے جو کہا وہ نکلا۔ اس نے کہا درخت اگے تو اگ پڑے۔ اور آپ جانتے ہیں آپ اور میں، ہم کون ہیں؟ ہماری شروعات کہاں سے ہوئی؟ خدا کے یہاں سے ہوئی۔ ہم کون ہیں؟ ہم خدا کا دل کا وہ پہلا خیال ہیں۔ اس نے پہلے ہمیں اپنے دل میں جنم دیا۔ وہ خیال میرے لیے، اقدس کے لیے جو آیا وہ اس کے دل میں آیا، جمیلہ کے لیے جو آیا دل میں آیا، آصف کے لیے جو آیا وہ دل میں آیا۔ آپ سب کے لیے فردن فردن آپ نے اس کے دل میں جنم لیا، اور جو دل سے بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ جو دل سے نکلا وہ اس کی محبت ہے۔ تب اس نے ہمیں انسانی شکل بخشی۔ تو ہم کھوئے تھے، ہم کو واپس لینا۔ زمین وہ نہیں بنا سکتا تھا، وہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن نہیں، جو اس کا اصل گیا تھا اسے وہی واپس چاہیے تھا، اور اس کے لیے اسے قیمت ادا کرنی پڑنی تھی۔ قیمت دینے کے لیے اس کے پاس آسمان بھی تھا، پر وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کہ وقت نہیں تھی۔ اس کے پاس فرشتے تھے، 2/3 فرشتے ابھی بھی اس کے پاس تھے۔ وہ بھیج سکتا تھا سارے فرشتوں کو، یہ لے کفارہ تو اپنے آپ کو پیش کرنا تھا۔ اتنے سارے فرشتوں کو کفارہ میں لے کے کیا کرنا تھا؟ اگر وہ ان کو ختم بھی کر دیتا وہ نئے بنا لیتا، پر فرشتوں میں تو خون ہی نہیں۔ جو اس نے انسان بنایا تھا اس میں خون تھا، اور خون کے وجہ سے خون چاہیے تھا۔ اور ایسے میں کفارہ ہمیشہ قیمتی چیز کا ہوتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے ضروری تھے بنائے، لیکن اس کے لیے وہ اتنے قیمتی نہیں تھے، اتنے ویلیویبل نہیں تھے جتنا اس کا بیٹا تھا۔ اور وہ یہ بھی سوچتا ہوگا، یا اس نے سوچا ہوگا، کہ اگر میں اپنا ایک بیٹا دے دوں، یہی تو میرے پاس ہے، تو یہ تو مر جائے گا، تو میں کیا کروں گا؟ لیکن آج جو وہ ہمیں گیونگ اینڈ ریسیونگ کا جو قانون دے رہا ہے،
इसको उसने खुद ही बनाया और खुद ही इस पर उसने अमल किया। ये कानून जब बिना आलम से पेशतर जब उसने प्लान कर रहा था दुनिया को बनाने का, मुझे और आपको बनाने का वो प्लान कर रहा था अपने बेटे के साथ, पाक रूह के साथ, ये सब चीजें जब उसने डिस्कस की, वो हमने इशायर बानी जब हम लेते हैं तो उसमें एक फिक्रा आता है, ये मेरे खून में वो नया अहद है। ये वो नया अहद कौन सा? वो जो बिना आलम से पेशतर उसने अपने बाप के साथ किया था। उसके बाप ने ये सारा उसको बताया था, मैंने तख्लीक करना है, आदम और हवा ने गुनाह में जाना है, ये सब कुछ होना है, उसका कफारा मुझे चाहिए होगा, बेटा तुझे जाना होगा। उसने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। ये सारी मीटिंग बिना आलम से पेशतर हो चुकी थी, लेकिन बेटे ने एक सवाल किया कि मैं कफारा तो दूंगा, मैं अपनी जान दूंगा, इसके एवज तू क्या देगा? तो बाप ने कहा कि तेरे खून पर, तेरी सलीब पर जो ईमान लाएगा मैं उसे हमेशा की जिंदगी दूंगा, मैं तुझे तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा करूंगा। उसके पास ये पहले से रूल था कि ये जाएगा और मैं इसे वापस लूंगा। खुदावन यसुन मसीह ने भी क्या कहा, मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है। जब उसे पैंतुस पिलातुस ने उसे कहा कि तू बोलता क्यों नहीं, मेरे पास इख्तियार है कि मैं तुझे बचा भी सकता हूं। तो उसने कहा अगर तुझे ऊपर से ना दिया होता तो मैं तुझे कभी मेरी जान पे ये इख्तियार हासिल ना होता। मैं अपनी जिंदगी दे भी सकता हूं और मैं ले भी सकता हूं। मैं वॉलंटरीली अपनी जिंदगी दे रहा हूं और मैंने ये लेनी है। ये रूल तब के बन गए हुए थे, इसलिए उसने अपना बेटा बेधड़क दिया और वो उसका इकलौता बेटा था, उसकी आसमान पर सबसे अजीज चीज थी और वो उसका बेटा था। हम अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम खुदा के किरदार का मुकम्मल अक्स है। अब्राहम के पास कुछ नहीं था, कोई बेटा नहीं था, वो मालदार था, बाप भी मालदार है, सब कुछ है। वो कहता है आसमान और जमीन मेरा है, जमीन की सारी सब्जी मेरी है, सोना मेरा है, चांदी मेरी है, तुम मुझे क्या दोगे? सब कुछ मेरा है। अब्राहम के पास भी सब कुछ था, उसके पास भी एक बेटा था, अब्राहम के पास भी एक ही बेटा था। और खुदा ने उसे जब मांगा तो क्या मांगा? बेटा, बेटा, बेटा। किसने कहा है? बाइबल में तो नहीं लिखा कि उसने कहा तो अपना बेटा मुझे दे। बाइबल मुकद्दस में तो लिखा है कि अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे दे, जो तुझे सबसे ज्यादा अजीज है। तो अब्राहम ने, उसे बहुत देर के बाद बेटा मिला था, उसे बुजुर्गी के दिनों में, बुढ़ापे के अयाम में, जब वो बिल्कुल कमजोर हो चुका था, खुदा ने उस वक्त मौजज़ा किया और बता दिया कि मैं मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता हूं। उसने उस वक्त उसको बेटा दिया और इज़हाक उसका सबसे सबसे अजीज चीज थी, उसके पैरेलल कोई चीज नहीं थी। इसलिए उसने किसी चीज को सोचा ही नहीं कि मैं भेड़ बकरियां दे दूं, मैं ये दे दूं, मैं नौकर दे दूं, मैं चाकर दे दूं, मैं अपनी लौंडियां दे दूं। नहीं, उसने सीधा क्या किया? खामोशी से उठाया अपना बेटा, लिया, लकड़ियां ली, नौकर लिया, डब्बे में आग ली और चल दिया। यीशु ने भी, आसमानी बाप ने भी कुछ नहीं सोचा, फरिश्ते दे दूं, ये दे दूं, सोना दे दूं, चांदी दे दूं। उसने एक ही सोचा, और वो क्या सोचा? अपना बेटा। उसने बेटा दे दिया। और इस ईमान पे कि मैं एक दे रहा हूं, वापस एक बेटा मिलेगा, वापस एक बेटा मिलेगा। कितने मिले? कितने मिले? बेशुमार, अनगिन, अनकाउंटेबल। एक बेटा दे के, और उसने कितने बेटे जो हैं वो लिए? इब्रानियों का खत निकालें जरा, इब्रानियों दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत, इब्रानियों दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत। क्योंकि जिसके लिए सब चीज़ें हैं और जिसके वसीला से सब चीज़ें हैं, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी निजात के बानी को दुखों के ज़रिया से कामिल करे। आमीन। बहुत से बेटे,
وہاں سے چلتے ہوئے 2000 سال سے یہ سلسلہ شروع ہے اس کے بیٹے بننے کا، اب بھی ہے، اور جب تک وہ لینے آ نہیں جاتا 1000 سالہ بادشاہی میں بھی اس کے بیٹے بننے ہیں۔ خدا کو کیسے یہ یقین تھا کہ جو میں کر رہا ہوں میرا بیٹا مجھے واپس ملے گا؟ اس کی جو گارنٹی تھی وہ یہ تھی کہ جو اس کے کلام کے اندر اس کی قدرت ہے، کلام کے اندر جو قدرت ہے وہ ہی اس کی گارنٹی تھی۔ وہ اس نے کہا روشنی ہو جا، ہو گئی۔ کس سے؟ جو قدرت تھی۔ خدا کے پاس بھی یہی گارنٹی تھی کہ جو قدرت میرے منہ کے لفظوں میں ہے وہی میرا بیٹا مجھے واپس دلائے گی۔ نہ صرف ایک بیٹا بلکہ پتہ نہیں کتنے بیٹے، ان گنت، ہم تو اسے کروڑوں میں بھی نہیں لا سکتے، اربوں میں شاید ہوں۔ لیکن خدا نے کس ایمان پہ دیا؟ کس گارنٹی کے ساتھ؟ کہ جو میں دے رہا ہوں مجھے واپس ملے گا، کیونکہ خود خدا کو اپنے منہ کے کلام کی قدرت پہ یقین تھا۔ اگر خدا کو خود یقین تھا، بیٹے کو یقین تھا، وہ بھی تو اسی لیے آ گیا آسمان سے زمین پر، اسی لیے اس نے کہا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ اور اس نے یہ قدم اٹھایا، اور سارا کا سارا نجات کا جو منصوبہ ہے وہ کس کے گرد گھومتا ہے؟ دینے اور لینے پر، گیونگ اور ریسیونگ پر۔ اور خداوند کا شکر ہے، ہالےلویا، کہ یسوع صلیب پر ایویں فضول میں نہیں لٹکا ہوا تھا، بلکہ وہ سیڈ تھا، وہ بیج تھا، وہ پہلا بیج تھا جو مرا، اور اس کے مرنے کے وسیلہ سے جو فصل پیدا ہوئی وہ میں اور آپ ہیں۔ ہم اس کے صلیب کا پھل ہیں۔ تو خدا کو جو دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ وہ لوٹانا چاہتا ہے۔ اس کا بیٹا کیوں زندہ ہوا؟ کیونکہ باپ کو ایمان تھا، یقین تھا کہ اس نے زندہ ہونا ہے، یہ واپس میرے پاس آئے گا اور ملٹی پلائی ہو کے آئے گا۔ ہمیں بھی خدا کے اس اصول پر ہمیں ایمان لانا ہے، اور ہمیں اس کے نیک کاموں کے لیے ہمیشہ دینا ہے۔ اس آیت کو یاد کر لیں، یہ قدم قدم پہ آپ کی مدد کرے گی، رہنمائی کرے گی۔ جب دل تھوڑا ہونے لگے گا کہ میرے کو تو ایہی کچھ ہے وے، میں تو دے دیتا، 2 دمڑیوں والی عورت نے 2 دے دی تھی، اس کے پاس وہی کچھ تھا، دے دیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے دے دیا، لیکن خدا کا اصول یہ نہیں ہے کہ جو تم کر سکتے ہو وہ دے دو۔ اس کا یہ اصول ہے جو تیرا بہترین ہے وہ دے، جو تیرا بہترین ہے تو وہ دے، جو کر سکتا ہے۔ ہمارا کیا اصول ہے؟ جڑی چنگی شے سام کے رکھ لینی، جڑی نہیں ہے وہ دے دو۔ اچھا سوٹ ہم کبھی کسی کو نہیں دیتے، جڑا پاٹن دے نیڑے نیڑے ہوندا ہے نا، وہ اسی کہنے چل اے تسی لے۔ خدا کا اصول کیا ہے؟ بہترین دو۔ اچھا پیمانہ ابھی ہم نے پڑھا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر تمہارے پلے میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے کیا کرو؟ تم بھی اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر خدا کے پلے میں ڈالو، اس کے کاموں کے لیے ڈالو، تو تمہیں بھی خدا اپنے پیمانوں سے ناپتا ہے۔ ہم اپنے پیمانوں سے ناپتے ہیں، اس کے پیمانے اور ہیں، ہمارے پیمانے اور ہیں، اس کے پیمانے اور ہیں، اس کے محبت کے پیمانے ہیں۔ وہ کھلے دل سے، وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق دیتا ہے، اس کے پاس جتنا وہ اس کے مطابق دیتا ہے۔ سو ہمیں خداوند کو دینا ہے، اور دینے کے حوالے سے جو نیچر ہے، جو چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں بہت زیادہ، جب ہم خداوند کے کام کے لیے دیتے ہیں تو یہ موسمی نہیں ہے۔ جیسے گندم جو ہے وہ اکتوبر نومبر میں بوئی جائے گی اور اپریل مئی میں کاٹی جائے گی۔ کبھی کسی نے مئی میں گندم نہیں بوئی، مئی جون میں چاول بویا جائے گا اور سپٹمبر میں کاٹا جائے گا۔ لیکن جب ہم خداوند کے لیے دیتے ہیں، اس کے نیک کاموں کے لیے دیتے ہیں، تو یہ موسمی نہیں ہے، یہ سدا بہار ہے، یہ موسم کے لحاظ سے نہیں ملے گا۔ اور پھر یہ
कुछ वक्त के लिए नहीं है। जैसे जो सब्ज चने हैं, छोलिया है, 1.5 माह रहता है, कोई फल है 1 माह रहता है, बल्कि ये सदाबहार पौधे की मानित है जिस पर सारा साल ही वो हरा ही रहता है और उस पर सारा साल ही फूल लगते हैं। जब हम खुदावन के लिए, उसके नेक कामों के लिए हम देंगे तो हमेशा ही हमें मिलता रहेगा। आपने एक दरख्त लगाया, मेरे हाथ में, समझें कि मेरे हाथ में एक माल्टे का बीज है, माल्टे का एक बीज है, एक माल्टे के बीज नहीं, एक माल्टे का एक बीज है। आपको क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आया? मैंने कह दी ना, जरा समझ लें कि फर्ज किया ये, चले जी ये माल्टे का बीज है। कितना बीज, क्या नजर आ रहा है आपको? कि एक बीज। मुझे ये बागों के बाग नजर आ रहे हैं। मैं उस एक बीज को फेंक के जाया नहीं करूंगी, मैं उस एक बीज को बो दूंगी, उससे पौधा निकलेगा, वो माल्टे का पौधा बनेगा। उसमें कितने माल्टे लगेंगे? एक। हाँ, बहुत ज्यादा। एक माल्टे के अंदर कम से कम कितने बीज हो सकते हैं? कम से कम भी 20 से 25। अब एक माल्टे को ही ले, आपने एक बोया और उसका बीज आपने जब बड़ा वो तो एक दरख्त बना, और एक माल्टे के अंदर 20 से 25 होते हैं। और अगर सारे माल्टों को गिने तो कितने माल्टे होंगे और उनके अंदर कितने बीज होंगे? और आप जस्ट एक माल्टे के बीजों को बो दे तो 25-26 आपके तो वही दरख्त होंगे। और अगर आप उस सारे दरख्त के बीजों को बो दें तो क्या होगा? इतना बड़ा बाग लग जाएगा, तो घूमना फिरना मुश्किल हो जाए, तो उससे गड्डी ते बह के जाओगे अपने बागान में फिरोगे। खुदावंद आपको इस किस्म की बरकत देना चाहता है। अपने पैसे को बीज का नाम दे, कलाम के फैलाव के लिए दे, भूखे प्यासों रूहों के पास खुदा का कलाम पहुंचे। खुदा अपने जलाल के दौलत के मुआफिक हमारे लिए वो सब कुछ कर सकता है, बस हमें देने के तरीकों को तब्दील करना है। आज खुदावंद एक तब्दीली लाना चाहता है हमारे घरानों में, हमारी सोचों में। सोचें बदलेंगी तो घराने बदल जाएंगे, मुआशी हालात बदल जाएंगे। नस्लों के लिए बोना है, अपने लिए बोएं, अपने खुदावन के लिए बोए, ताकि उसका कलाम दुनिया की इंतहाओं तक पहुंचे। अपने लिए बोएं ताकि बुढ़ापे में मांगना ना पड़े, कोई लाए तो हमें दे। मैंने खुदावन से मैंने बोना शुरू कर दिया अब इस मकसद के लिए कि खुदावन मैंने रिटायर होना है तो मैंने किसी से नहीं मांगना, मैंने सारी उम्र नहीं मांगा, मैंने अब भी नहीं मांगना। और जितना अच्छा मैं अब खाती पीती हूँ, मुझे इससे 100 गुना अच्छा तूने पहनने को देना है, खाने को देना है। मैंने अपने बेटे से नहीं मांगना, मैंने अपने खामन से नहीं मांगना, मैंने अपनी बेटी से नहीं मांगना। मैं तुझ पर यकीन रखती हूँ, मैं तुझ पर यकीन करती हूँ, मैंने तेरे कलाम को अव्वल दर्जा दिया है, मैंने तेरे हुजूर से लेना है। हमारी जिंदगियों को इस तरीके से होना चाहिए। हमें देना है। जब हम खुदा की तरह की मोहब्बत करेंगे तो तब ही उसकी सारी बरकत हमें मिलेंगी, और उसकी बरकत में ईमान, निजात, उम्मीद, खुशहाली, शिफा, ये सब चीज़ें कब मिलती हैं? जब हम देते हैं तो हमारे जिस्मानी हालात बदलना शुरू हो जाते हैं, शिफाएं आना शुरू हो जाती हैं। अभी भाई ने कलाम कोट किया कि तू अपना कलाम नाज़िल फरमा के अपने लोगों को शिफा बख्शता है। तो खुदा का कलाम क्यों नाजिल होता है? वो हमारे हालात बदलना चाहता है। वो कहता है कि मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है कभी बेअंजाम वापस ना लौटे। जिस काम के लिए भेजा जाता है उसमें वो मुअस्सर होगा। कि ये जो हम सेमिनार्स के लिए, क्रूसेड्स के लिए, चर्च के लिए देंगे, इससे खुदावन के घराने में इजाफा होगा, उसकी आबादी में इजाफा होगा और दुश्मन की आबादी कम होगी। और किस रूल के तहत देना है? आधे रूल को कभी ना लेना, देने के पे ना रहना, बल्कि वापस लेने की कि मैंने लेना है, मेरा खुदा मुझे देगा वापस, क्योंकि वो कहता है
दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। और वो हर तरह का फजल हम पर कसरत से कर सकता है ताकि हमें हर चीज़ हमेशा काफ़ी तौर पर मिला करे और नेक कामों में देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ रहा करे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बहुत बरकत दे और हम यहाँ इतनी गवाहियाँ पैदा हों देने के हवाले से और वापस लेने के हवाले से कि मैंने जब दिया तो मुझे खुदा ने कितनी उसके इवज़ बरकत दी। आमीन। खुदावंद हम सबों को बहुत बरकत